Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में हम NCERT exercise solutions डिस्कस करने वाले हैं of the second chapter which is matter around us pure. So let's start today's session. Before that, जो भी बच्चे first time देख रहे हैं मुझे इस particular channel पे, चैनल को definitely subscribe करना and do share this session with your friends also. Let's start today's session with a dose of motivation, which is never measure your progress using someone else's ruler. So basically, you should never ever compare yourself to anybody else's journey, because all of us are unique. Okay, so start karte hain with the very first question, which is write the steps you would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. So basically आपको steps लिखना है चाय बनाने के लिए and you have to use the words which is actually mentioned already over here. So basically अगर आपने चाय बनाया ही होगा, so सबसे पहले क्या करते हो, you take a cup of water in a container as solvent and heated. So basically आपका जो water है that is the solvent, फिर आप उसको गर्म करते हो, heat energy देते हो, you heat it. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू ऐड शुगर, जो शुगर आपका क्या है, सल्यूट है ना, और आपको हीट करना है तब तक जब तक सारा शुगर डिसॉल्व नहीं होता. ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, यू एक्चुअली गेट अ सोल्यूशन ऑफ वाटर प्लस शुगर. तो जो वाटर है आपका दैट इज द सॉल्वेंट हियर एंड शुगर इज योर सल्यूट हियर, है ना. तो ये आपका एक प्रॉपर क्या बन गया, इनिशियली सोल्यूशन बन गया. After that, what you have to do, this actually we have already discussed, and half a teaspoon of tea leaves which is insoluble in water. तो आपको tea leaves, जिसे हम हिंदी में चाय पत्ती कहते हैं, that you have to add. और ये जो tea leaves होते हैं वो पानी में insoluble होते हैं, घुल नहीं सकते. ठीक है, after that आपको क्या करना है, इस कंटेंट को बॉईल करना है, मिल्क ऐड करना है. अगेन मिल्क इज एक्चुअली soluble in water. फिर you have to keep heating it, you have to boil again. Once that tea has been prepared, you have to filter the tea with the help of strainer. तो जो आपकी टी होती है कलेक्टेड में that is actually filtrate, और जो टी लीव्स होती हैं that is insoluble in the strainer is residue. तो जो आपकी टी लीव्स होती है that is insoluble which is actually the residue, जो आपके स्ट्रेनर में कलेक्ट हो जाती हैं. So this is the process for making tea. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. तो प्रज्ञा ने क्या किया, she tested the solubility of 3 different substances at different temperature पे, जिसका उसने डेटा कलेक्ट करके एक टेबल सा बनाया यहाँ पे. So the results are given in the following table as ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो बेसिकली कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ 100 ग्राम पानी में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो यहाँ पे सॉल्ट्स दिए गए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट्स इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर. सो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है mass of KNO3 that can be actually dissolved, mass of KNO3 that can be dissolved in 50 grams of water. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूं, ऑल्सो आई थिंक द टेम्परेचर इज ऑलरेडी मेंशन्ड, या 313 केल्विन पे. सो दिस इज एक्चुअली पोटेशियम नाइट्रेट पहला वाला. सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी व्हिच इज गिवन 62, है ना. तो 100 ग्राम पानी में 62 ग्राम आपका क्या अमाउंट सोल्यूबल है KNO3 का, है ना. देन अगर मैं 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करूंगी तो वो 62/100 होगा. 50 ग्राम के लिए कैलकुलेट करूंगी तो 62/100 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे. 5 2 10, 5 6 30, 31/10. सो दैट कम्स आउट टू बी 31 ग्राम. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. तो प्रज्ञा ने एक saturated solution बनाया पोटेशियम क्लोराइड का 353 केल्विन पे.
353 केल्विन पे उसने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी अगर वो सोल्यूशन को कूल डाउन होने देती है? सो इफ द सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल डाउन, जो भी आप एक्स्ट्रा एडेड सोल्यूट है दैट एक्चुअली क्रिस्टलाइजेस, सो दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सॉल्युबिलिटी है KCl की, इट इज डिक्रीज व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज loses heat at 353 Kelvin, तो जो भी उसने added जो extra solute डाला है that will observe as crystals, which also tells the less solubility of crystals at lower temperature. ठीक है, next find the solubility of each salt at 293 Kelvin which has the highest solubility at this temperature. तो आपको हर salt का solubility देखना है at 293 Kelvin. तो आपका ये potassium nitrate is 32, for sodium chloride it's 36, for KCl it's 35 and for ammonium chloride it's 37. So सबसे ज्यादा अगर आप देखो 37 is the highest value. So ammonium chloride, which is NH4Cl, is having the highest solubility. What is the effect of change of temperature on the solubility of salt? जब आप temperature बढ़ाओगे तो solubility of salt में क्या effect पड़ता है? So basically in solubility of salt it actually increases अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे. सो यू कैन से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, सो जो आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, अगर आप टेबल के उस पे भी देखोगे, सॉल्ट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो आप ये चीज बोल सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, सो अगर एक सॉल्ट उसके सैचुरेशन पॉइंट पे अराइव कर दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो अगर आप हीट एक्स्ट्रा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इट कैन अकोमोडेट, इट कैन एक्चुअली टेक इन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, व्हिच प्रूव्स कि अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ी है मतलब आपने टेम्परेचर ज्यादा दिया हुआ है. ठीक है, next question, explain the following giving examples. So basically what is saturated solution? Saturated solution एक ऐसा solution होता है जिसमें which has maximum amount of solute maximum amount of solute it can dissolve at a given temperature. ठीक है, now आपका pure substance क्या होता है? So pure substance is actually a type of substance which consists of same kind of particles, or you can say something which is having a constant composition throughout. कोलोइड्स आपके क्या होते हैं? कोलोइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है. इट्स अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसके जो सल्यूट पार्टिकल्स है उनका पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है. ठीक है, देन यू हैव योर सस्पेंशन. सो सस्पेंशन एक ऐसा, वो भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही है. सो इट्स योर हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन होता है अनस्टेबल. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं इसका, फॉर एग्जाम्पल हेटेरोजीनियस मिक्सचर में इसका मैं कोलोइड का एग्जाम्पल दूं, सो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, है ना, दिस इज योर एग्जाम्पल. अगर मैं सस्पेंशन में मडी वाटर, दिस इज योर एग्जाम्पल. ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. सैचुरेटेड सोल्यूशन भी हम डिस्कस, प्योर सब्सटेंस, कोलोइड और सस्पेंशन. ठीक है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो यहाँ पे आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफाई करना है. कुछ सेट ऑफ सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं. तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है. तो आपके जो इसमें एड ऑन पार्टिकल्स होते हैं यू कैन नॉट सी इट बाय योर नेकेड आइज, वेयर एज इन द केस ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो पार्टिकल्स है यू कैन सी इट विथ योर नेकेड आइज. ठीक है, सो अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, इसमें आपका आता है सोडा वाटर. ठीक है, देन यू हैव योर विनेगर, है ना, एंड फिल्टर्ड टी ऑल्सो इज होमोजीनियस. ठीक है, फिल्टर्ड टी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बचा फिर वो आपका क्या हो जाएगा? हेटेरोजीनियस हो गया. हाँ, एयर ऑल्सो. सो इन हेटेरो यू हैव soil that is actually left over here,
And what else is left here? That is actually it. So we have discussed about homo and heterogeneous mixture. होमो में आपका soda water, vinegar और filtered tea, that is actually I have mentioned. Air also I was there, that was actually skipped. So air is actually homogeneous mixture, not heterogeneous mixture. Heterogeneous में फिर आपका आएगा wood और soil. ठीक है. हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक कलरलेस लिक्विड दिया गया है, हाउ विल यू कंफर्म दैट इट इज प्योर वाटर? तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई कलरलेस लिक्विड दिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, सो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ये आपका प्योर वाटर है, बिकॉज प्योर वाटर विल एक्चुअली हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. सो अगर एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, सो दैट विल बी योर प्योर वाटर. ठीक है, चलो. Which of the following materials fall in the category of pure substances? Ice, milk, iron, hydrochloric acid, calcium oxide, mercury, brick, wood, air. So pure substance में अगर मैं बात करूं, pure substance में you have element and the other one is compound. ठीक है, so you have elements and compound. So इसमें से कौन कौन सा pure substance होगा? Ice will be your pure substance, iron will be your pure substance, hydrochloric acid is an example of compound. ठीक है, then calcium oxide will be your pure substance, mercury will be your pure substance. ठीक है, बाकी the rest of the things will be not your pure substance. Okay, so ice, iron, HCl, calcium oxide or mercury are your pure substance. Identify the solutions among the following mixtures. तो इसमें से आपको solution identify करना है. Solution as in like here it will be homogeneous mixture जिसके particle size बहुत छोटे छोटे होते हैं. So homo का मतलब होता है having uniform composition. ठीक है, homo का मतलब होता है having uniform composition. homogeneous mixture का मतलब ये होता है. So in this sea water, soda water or air, these all are examples of homogeneous mixture because in all these cases the particles you cannot see by naked eyes. ठीक है, next, which of the following will show Tyndall effect? Salt solution, milk, copper sulfate solution, स्टार्च सोल्यूशन. तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली आपका शो करता है सस्पेंशन और कोलोइड. अगर सोल्यूशन है तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मिल्क और आपका स्टार्च सोल्यूशन, बोथ विल शो टिंडल इफेक्ट. ठीक है, so milk and starch solution will show Tyndall effect. Classify the following into elements, compounds or mixture. Okay, तो यहाँ पे आपको कुछ set of things दिए गए हैं. You have to classify into elements, compounds or mixture. So here let's actually make a table. E for element, M for, यहाँ पे मैं पहले C लिख देती हूँ, element, compound and then mixture. Element, compound and then mixture. तो इसमें आपका element कौन सा है? सोडियम. ठीक है, then you have silver which is Ag, then tin which is Sn, silicon is your element, then soap, methane, no, then it is actually not. Compound में कौन कौन सा है? Compound में आपका आ जाएगा CaCO3. ठीक है, then you have methane, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कंपाउंड हो गया. ठीक है, अब इसमें मिक्सचर में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? सॉइल विल बी योर मिक्सचर, then you have air will be your mixture. ठीक है, blood will be your mixture, है ना? Then what else is there? This is actually one form of, so here also I will say coal. ठीक है, coal will be your mixture. Then what else is there? तो आपका ये sugar solution, this will be also your mixture. ठीक है, sugar solution, I think I have not missed any. sugar solution, silicon, silver, ये सब यहाँ पे आ गया. हाँ, ठीक है, blood also, this actually I have mentioned already, है ना? I think हाँ, one thing I have missed which is actually soap. This is also your mixture. तो ये आपका element, compound और ये आपका क्या हो गया? This will be your
मिक्सचर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इसमें से कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं? केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। सो आई विल जस्ट मेंशन इट हियर। इन द केस ऑफ केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड जनरली जो आपका चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है एंड इट इज जनरली irreversible in nature। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बोलूं ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, सिंस नाउ बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल और केमिकल बोथ। ठीक है, तो इसमें से ये आपके एग्जांपल्स हैं किसके? केमिकल चेंज के। सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस and it is generally permanent and irreversible. Based on which factor for a solution is said to be diluted, concentrated or saturated? So I think yeah, this is your homework question. इसका आंसर मुझे comment section में जरूर देना। So that's it from my side. I hope आज का सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा आप सबको। इस पर्टिकुलर होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। न्यू हो चैनल पे डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू विद येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।